آن لائن فن خطابت کورس کلاس نمبر 20۔ میرے پیارو، آج کی اس نشست میں ہم قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ کو ڈسکس کرتے ہیں۔ ہمارا تسلسل چل رہا ہے ان آیات مبارکہ کے حوالے سے کہ جن میں خطابت کا تذکرہ موجود ہے، وضاحتاً، صراحتاً اور بالکل عیاں۔ ان میں سے ایک آیت مبارکہ ہے پارہ نمبر 20 سورہ قصص، سورہ نمبر 28 آیت نمبر 34۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں درخواست کی، دعا کی، التجا کی، عرض کی۔ کیا؟ حضرت موسیٰ کہتے ہیں اے اللہ، وَأَخِي ہارون، یہ میرا بھائی ہارون ہے، ہوا افصح منی لسانا، یہ مجھ سے زیادہ فصیح ہے۔ افصح اس میں تفضیل کا صیغہ، مجھ سے زیادہ فصیح ہے، لسانہ زبان کے اعتبار سے۔ فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ يَرِدْ أَن يُصَدِّقُونِي، آپ انہیں میرے ساتھ بھیج دیں بطور مددگار کے تاکہ وہ میری تصدیق کر سکیں۔ اب یہاں پر دیکھیں خطابت کا کتنی وضاحت اور کتنی صراحت کے ساتھ ذکر موجود ہے، اور کہاں پر ہے؟ ہوا افصح منی لسانہ میں، یہ ہے خطابت۔ اب میں اس آیت مبارکہ کی خطیبانہ اور فنی لحاظ سے، خطابت کے لحاظ سے میں آپ کے سامنے تعبیر اور تشریح اور تفسیر عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں، اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ صاحب شریعت، صاحب کتاب، صاحب حکمت پیغمبر ہیں، لیکن ان کے پاس ایک چیز کا ملکہ نہیں تھا، اور وہ کیا تھا کہ یہ مجمع میں خطاب نہیں کر سکتے تھے۔ خطابت والے انداز میں، خطیبانہ انداز، خطیبانہ وے پر مجمع کے سامنے خطاب نہیں کر سکتے تھے۔ اور اس کے برعکس ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام وہ خطیبانہ زبان کے مالک تھے۔ خطابت، فصاحت، بلاغت یہ ان کی زبان کا حصہ تھا۔ جب کلام اور گفتگو کرتے تھے تو جو سامعین ہوتے تھے اور مجمع ہوتا تھا وہ ان کی گفتگو کے سحر میں جکڑا جاتا تھا۔ اللہ پاک کی ذات نے ایسی فصاحت و بلاغت اور ایسی خطابت اور ادبیت اور انداز کلام، انداز تکلم، انداز بیان حضرت ہارون علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بات کو سمجھا کہ جب فرعون کے سامنے اور دربار فرعون میں اور مجمع فرعون کے سامنے جا کر گفتگو کرنی ہے نا، تو وہاں پر ایک خطیب کی گفتگو نے جو اثر چھوڑنا ہے وہ غیر خطیب کی گفتگو اثر نہیں چھوڑ سکتی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس سے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو مانگا۔ اس کو آپ سادہ لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ پاک کی ذات سے مانگا تو ایک خطیب مانگا۔ حضرت موسیٰ نے اللہ کی ذات سے مانگا تو کیا مانگا؟ ایک خطیب مانگا۔ اب اس کو ذرا آپ آج کے دور میں جلسوں پر، کانفرنسز پر اپلائی کر کے دیکھیں۔ ہمارے ہاں بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، کانفرنسز ہوتی ہیں، محافل ہوتی ہیں، پروگرامز ہوتے ہیں، سیمینارز ہوتے ہیں۔ ان پروگرامز میں جہاں پر ہم علماء کو، صلحاء کو، اتقیاء کو، اصفیاء کو اور نجباء کو، اسی طرح اہل علم کو، محققین کو، ریسرچر کو، اسی طرح مصنفین کو، مؤلفین کو، مرتبین کو، مناظرین کو بلاتے ہیں اور ان سے خطابات کرواتے ہیں اور ان سے بیانات دلواتے ہیں، وہیں پر ہم لوگ از خود اس بات کی کمی محسوس کرتے ہیں اور ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ کوئی ایک آدھ خطیب بھی اس میں لازمی ہونا چاہیے۔ کتنے جلسے آپ دیکھ لیں، کون تشریف لا رہے ہیں؟ ولی ابن ولی تشریف لا رہے ہیں۔ کون تشریف لا رہے ہیں؟ ایک اللہ والا تشریف لا رہا ہے، لیکن اس اللہ والے کے ساتھ ساتھ کوئی ایک آدھ خطیب بھی ہم ضرور ہائر کرتے ہیں، ایک آدھ خطیب بھی ضرور رکھتے ہیں۔ تو یہ کیوں رکھتے ہیں؟ اس لیے رکھتے ہیں کہ ہمارے جلسے کا، کانفرنس کا جو کامیابی کا انحصار ہے وہ اس خطیب پر ہوا کرتا ہے۔ مجمع لوگ، سامعین خطیب کی گفتگو کو سننا پسند کرتے ہیں۔ خطابت اثر چھوڑتی ہے، خطابت کا اثر ہوتا ہے۔ یہ سیم ٹو سیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو کیفیت ہے، وہ صاحب علم تھے، یا آپ یوں سمجھیے کہ وہ جو ہماری لسٹ ہے نا، صالح،
अतकिया, असफिया और नुजबा और वो उलमा के जो इल्म के पैकर हैं, इल्म के मुजस्सम हैं और उनके पास खताबत नहीं, ये वाला स्टेटस हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का था। और इनके मुकाबले में जो हजरत हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे, इनका इल्म वो कशीद था हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। यानी हजरत हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इल्म का मंबा, माखज, मर्जे, मस्दर और सरचश्मा हजरत मूसा की जात थी। लेकिन बावजूद इसके इनके पास एक और वसफ था, और वो क्या था? वो था खताबत का वसफ। जिस तरह हमारे यहां होता है कि एक उस्ताद है साहिब इल्म, हमने उन्हीं से किताबें पढ़ी हैं, लेकिन वो हमारे जो उस्ताद साहिब होते हैं ना, वो दरसगाह में तो गुफ्तगू कर लेते हैं, लेकिन अगर आप मजमे में कहें तो उस्ताद जी कहते हैं कि भाई किसी खतीब ने बुला, मैं तो भाई दरसगाह में बात कर सकता हूं। हालांकि वो साहिब इल्म हैं हमारे उस्ताद, और जिस खतीब को बुलाना है, मुमकिन है कि उस खतीब के पास उस हमारे उस्ताद और साहिब इल्म के करीब करीब भी कोई इल्म मौजूद ना हो, लेकिन उसके पास खास टैलेंट और सलाहियत है, और वो है खताबत का मलका और खताबत का टैलेंट। यानी इस साहिब इल्म के पास वो नहीं है, उस्ताद साहिब के पास वो नहीं है, लेकिन एक बंदे के पास है, उसे खतीब कहा जाता है। तो हमारे उस्ताद आज खुद कहते हैं, हालांकि मैं ये समझता हूं कि मुदर्रिस से बड़ा कोई आलिम नहीं होता, मुदर्रिस से बड़ा कोई आलिम नहीं होता, और जो खुतबा होते हैं फकत खताबत करते हैं, उनके पास इतना इल्म नहीं होता जितना कि एक मुदर्रिस के पास होता है। क्यों? मुदर्रिस तो इल्म की बुनियादी किताबें पढ़ाता है, या यूं कह लीजिए कि मुदर्रिस तो बाप है, बाप इल्म का, और मुदर्रिस तो इल्म बांटता है, तकसीम करता है, और इसी मुदर्रिस की वजह से तो उलमा तैयार होते हैं, इसी मुदर्रिस के दिए गए इल्म और असबाब की वजह से तो तुल्लाब तैयार होते हैं, खुतबा तैयार होते हैं, आले इल्म तैयार होते हैं। तो इसके पास अगर इल्म नहीं होगा तो और किसके पास होगा? सबसे ज्यादा अगर इल्म किसी के पास है ना, वो शोबा कुतुब में पढ़ाने वाले मुदर्रिसीन के पास है। और मैं आमतुन्नास से भी कहा करता हूं कि जब भी मसला पूछना हो ना, मसला फिक़ही, शरई, दीनी, मजहबी, तो आपको किससे पूछना है? उससे पूछना है जो हाजिर सरवस उस्ताद है, मुदर्रिस है किसी मदरसा में, उससे आपने मसला पूछना है। क्यों? इसलिए कि उस उस्ताद की जो मुताला है, उस उस्ताद की जो नजर है, हर वक्त उन किताबों पर रहती है, और हर रोज रहती है, हर वक्त रहती है। कभी इस घंटे में, कभी उस घंटे में, कभी इस पीरियड में कुछ, कभी उस पीरियड में, कभी इस क्लास में, कभी उस क्लास में। वो असातिज़ा फिक़्ह की किताबें पढ़ाते हैं, कंजुद दकाइक पढ़ाते हैं, मुख्तसर अल कुदूरी पढ़ाते हैं, अल हिदाया पढ़ाते हैं, और जितनी फिक़्ह की किताबें हैं वो मुख्तलिफ किस्म के जो दराजात हैं, सानिया को, सालिसा को, राबिया को, खामिसा को, सादिसा को, मिशकात वालों को, दोरे वालों को वो पढ़ाते हैं। फिक़्ह की किताबें, फिक़्ही मसाइल रोज के मामूलात में उनके शामिल और दाखिल है। तो सही जो मसला पूछने से मुताल्लिका शख्सियत है ना, वो मुदर्रिस हुआ करता है कि आप मुदर्रिसीन से जाकर किसी भी किस्म का शरई मसला पूछें और दरियाफ्त करें। उनका बताया हुआ मसला परफेक्ट होगा, दुरुस्त होगा, सही होगा, और किताबों के मुताबिक होगा, और इसी तरह माखज के मुताबिक होगा। और जो वैसे हमारे यहां चलतू फिरतू होते हैं, या इसी तौर पर जो मुदर्रिस नहीं होते, वैसे खतीब होंगे, वैसे मुरब्बी होंगे, वैसे कोई और उनकी फील्ड होगी, लेकिन मुदर्रिस प्रॉपर नहीं है, तो उनका इल्म और इनका इल्म, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि सबसे ज्यादा इल्म मदरसा में, शोबा कुतुब में पढ़ाने वाले मुदर्रिस के पास होता है, मगर बावजूद इसके वो मुदर्रिस कहता है कि भाई अगर अपने जलसे को, कॉन्फ्रेंस को, प्रोग्राम को, महफिल को, तकरीब को आपने कामयाब करना है, करवाना है, तो फिर मुझे छोड़िए, आप फुला खतीब साहब को बुलाएं। खतीब साहब आएंगे, जब बयान करेंगे, खिताब करेंगे, फिर आप देखिएगा कि किस तरह से आपका जलसा, आपका प्रोग्राम कामयाब होता है। तो अब यहां पर हमारे सामने दो चीजें आ रही हैं, दो चीजें वाज़ेह हो रही हैं। यही मैं आपको हजरत मूसा और हारून के किस्से से बताना चाहता हूं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम गोया के जो हमारे मुदर्रिसीन हैं, उनका, मुदर्रिसीन का और मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इस फील्ड से ताल्लुक है, और हजरत हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो खुतबा का एक
मजमुआ है, खुतबा की जमात है, उनका ताल्लुक इसके साथ है। हजरत मूसा और हजरत हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इन दोनों में से ज्यादा साहिब इल्म कौन है? हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, क्योंकि वो साहिब किताब पैगंबर हैं, साहिब तौरा हैं। तो सबसे ज्यादा इल्म किनके पास है? हजरत मूसा के पास। और खताबत देखी जाए सबसे ज्यादा किसके पास है? हजरत हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास। और हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम यानी अहले इल्म, साहिब इल्म, हामिल इल्म कमी महसूस कर रहा है खताबत के एतबार से। इसीलिए अल्लाह से कहता है वह आखी हारून, मेरा भाई हारून, हुआ अफसहु मिन्नी लिसाना। यह नहीं कहा कि वो मुझसे इल्म के एतबार से ज्यादा इल्म वाले हैं, नहीं, दलाइल के एतबार से ज्यादा दलाइल वाले हैं ना। हुआ अफसहु मिन्नी लिसाना, जुबान की फसाहत और बलागत और अदबियत के एतबार से मुझसे ज्यादा है। इससे यह पता चला कि एक खतीब की अहमियत किस कदर ज्यादा हुआ करती है मुआशरे में, या अपना पैगाम डिलीवर करने में, मुंतकिल करने में, अपनी सोच और फिक्र और काज और मिशन, नजरिया और अकीदा आगे मुंतकिल करने में खतीब की कितनी जरूरत होती है। और मैं यहां पर आपको एक बात बताऊं, किसी भी मजहब, किसी भी मसलक, किसी भी तंजीम और किसी भी तहरीक, उसके कमाल, शबाब, उसके उरूज, उसकी तरक्की, उसके फैलाव के लिए सबसे ज्यादा जिनकी मेहनतें, कोशिशें रंग लाती हैं ना, वो खुतबाए किराम हैं। मैं इसको यूं भी कहूंगा तो बिल्कुल हकीकत पर मबनी होगा कि वो तहरीक, तंजीम, मसलक, मजहब कभी कामयाब नहीं हो सकता कि जिस मसलक व मजहब, तहरीक और तंजीम में खतीब ना हो। ऐसे समझें कि मजहब व मसलक, तहरीक व तंजीम और जमातें ये खुतबा के बलबोते पर परवाज करती हैं। तंजीमों तहरीकों के अगर बाजू और पर समझे जाए ना तो वो खुतबाए किराम हैं। बाकी उनका इंजन, उनका ईंधन, उनका फ्यूल अहले इल्म हैं, सुलहा हैं, अत्किया हैं, असफिया हैं। लेकिन परवाज के लिए पर वो कौन है? खुतबाए किराम। गोया कि अगर खुतबा नहीं है तो समझो कि वो तहरीक और तंजीम उसके पर कटे हुए हैं। और आप समझते हैं कि पर कटों के साथ परिंदे जिंदा तो रहते हैं, ये नहीं कि मर जाते हैं, और चलते भी हैं, खाते भी हैं, पीते भी हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन परवाज नहीं कर सकते, उड़ान नहीं भर सकते, ऊपर नहीं जा सकते। तो खुतबाए किराम ये तंजीमों, तहरीकों, मसालिकों, मजाहिब के क्या हैं? पर हैं, पर जनाह हैं, और इन्हीं के बलबोते पर तहरीकें प्रवाज करती हैं। और यहां पर एक बात मैं ये भी कहूंगा, जमात इस्लामी का आपने नाम सुना है, जिसकी इब्तिदा की थी सैयद अबुल आला मौदूदी रहमहुल्लाह ने, और उसके बाद मियां मोहम्मद तुफैल, काजी हुसैन अहमद और मुनव्वर हसन, उसके बाद फिर सिराजुल हक, और अब हाफिज नईम उर रहमान। ये इसके बड़े बड़े कह लें कि ज़ुअमा हैं और इसके उमरा हैं। अब इस तहरीक में एक खामी जो मैंने नोट की है, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कई खूबियां, खामियां भी कई हैं, खूबियां भी बहुत ज्यादा हैं, कि ये सियासी हवाले से निचोड़ हैं, साहिब इल्म हैं और दर्क रखने वाले हैं, हालात को समझने वाले हैं, इनके पास पूरी टीम है, इनकी जमात में जमहूरियत है और शोराई निज़ाम है, और इनकी जमात में आमरियत नहीं है, मौरूसियत नहीं है, यानी बहुत ज्यादा इसमें खुसूसियत पाई जाती। जो कमी है बुनियादी, वो पता कौन सी है? वो ये है कि इस जमात को कुदरत ने खतीब नहीं दिए। जमात इस्लामी के पास खुतबा नहीं है, वैसे लेक्चरार हैं, वैसे मुरब्बियान हैं, वैसे गुफ्तगू करने वाले हैं, लेकिन जो खतीबाना अंदाज में गुफ्तगू होती है ना, वो इस जमात को मुयस्सर नहीं। इसी वजह से बावजूद इसके कि जमात इस्लामी है, बावजूद इसके कि इनका जो खिदमत का और समाजी और सोशल और वेलफेयर जो काम है, उसका काम बहुत ज्यादा है, वर्क बहुत ज्यादा है, और इलाकों में काम करते हैं, टाउन्स में काम करते हैं, और सोसाइटियों में काम करते हैं, सैलाब ज़दगान के लिए काम करते हैं, ज़लज़ला ज़दगान के लिए काम करते हैं, फ़लस्तीन के लिए, कश्मीर के लिए, पूरी दुनिया में इनके ये वाले काम और कारनामे पाए जाते हैं। इसी तरह इनके पास टीम है, इनके पास विजन है, इनके पास मंशूर है, इनके पास दस्तूर है, इनके पास पूरा मैकेनिज्म और निज़ाम है कि अगर हमारे पास हुकूमत आए तो हम किस तरह से पाकिस्तान का निज़ाम चला सकते हैं।
मगर बावजूद इसके ये इतने हाई लेवल पर क्यों नहीं जा रही? उसमें कमी क्या है? कमी खुतबा की है। जिस दिन इस तहरीक को खुतबा मुयस्सर आ गए तो यकीन जाने के फिर आप इसकी परवाज और उड़ान को देखिएगा। आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि इस तहरीक को कितनी परवाज और कितनी उड़ान मिलेगी। इस तहरीक के पास सब कुछ है, पांव भी हैं, जिस्म भी है, दिमाग भी है, खून भी है, सब कुछ है। नहीं है तो उड़ने वाले इस परिंदे के पास पर नहीं है, यानी कि खुतबा इनके पास नहीं है। तो खुतबाए किराम अगर किसी तहरीक को मुयस्सर आ जाएं तो वो इंतहाई ज्यादा लोगों पर अपना असर छोड़ती है, इंतहाई ज्यादा लोगों पर, मुआशरों पर असर अंदाज होती है। और यहां पर मैं एक और बात की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहूंगा। मसलके अहले हदीस, इनकी कामयाबी की और इनके देखते ही देखते उरूज की दास्तान क्या है, रीजन और वजह क्या है। हालांकि अगर आज से आप तकरीबन 15 साल पहले चले जाए या 20 साल, तो यकीन जाने के जो हमारे अहले हदीस भाई थे इनकी मसाजिद भी कम थी और इनको अजनबी महसूस किया जाता था। मुआशरों में अजनबियत ये भी फील करते थे और मुआशरे भी इनकी मौजूदगी में अजनबियत फील करते थे। मगर आप देखें अब यकसर हालात बदल चुके हैं, अब चेंजिंग और तब्दीली आ चुकी है। अब इनका मसलक फैलता जा रहा है, मसाजिद बनती जा रही हैं और लोग जोक दर जोक इनके मसलक में आ रहे हैं, इनको सुन रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, सब कुछ। यानी समझे कि नॉर्मल हालात, जैसा कि हमारा जो मुआशरा है उसकी फिजा बरेलवी भाइयों के लिए, देवबंदियों के लिए साजगार है ना, अब इन भाइयों के लिए भी साजगार है। कभी आपने सोचा कि इसके पीछे राज क्या है, इसके पीछे हिकमत क्या है, इसके पीछे रीजन और वजह और सबब और इल्लत क्या है? सबब और इल्लत, रीजन और वजह इनके खुतबा हैं। मसलक के अहले हदीस अगर कोई पूछे ना कि किस बेस पर फैला, वो तो कहेंगे दलाइल पर और फला फला पर। वो अपनी जगह पर चीजें हैं कि हम किताब और सुन्नत से बात करते हैं, हम दलील से बात करते हैं, इस बिना पर। मैं इससे अगली बात करता हूं कि मसलक के अहले हदीस अगर फैला है तो उनके खुतबा की वजह से फैला है। मसलक के अहले हदीस की कोख से नामवर और पॉपुलर खतीब पैदा हुए हैं और मुतरन्नम खतीब पैदा हुए हैं, सुरीले खतीब पैदा हुए हैं, जोशीले खतीब पैदा हुए हैं। ऐसे खतीब पैदा हुए हैं कि जिनकी आवाज लोगों के दिलों पर हुकूमत करती है। ऐसे खतीब पैदा हुए हैं कि जिनकी आवाज में शीरीनी है और उनकी आवाज खताबत से भरी हुई है और खताबत से मुरस्सा है, मुरक्का है और खताबत के नगीनों से जड़ी हुई है। खताबत के बेस और खताबत के बलबोते पर मसलक के अहले हदीस फैला है। इतनी ज्यादा अहमियत है खुतबा की। मसलको मजहब की तरवीज और इशाअत के लिए जो किरदार खुतबा अदा करते हैं ना, या जिसकी वजह से मसलक को, मजहब, जमात, तहरीक और तंजीम को उरूज, बाम, तरक्की, उड़ान मिलती है, वो खुतबाए किराम का तबका है। कोई शख्स इसकी अहमियत से इनकार नहीं कर सकता। अगर कोई शख्स इनकार करे कि नहीं ऐसी बात नहीं है, तो फिर मेरा चैलेंज है, मैं ये कहता हूं कि आप 1 साल अपनी तंजीमों, तहरीकों, मसलकों, मजहब से खुतबा को साइड पे कर दे, यानी उनके खुतबात ना करवाएं, उनके बयानात ना करवाएं। आप उलमा को, यानी जो गैर खतीब हैं, सुलहा को जो गैर खतीब हैं, उनको आप जलसों में, प्रोग्राम्स में, कॉन्फ्रेंसिस के अंदर, महाफिल में, तकारीब में, जुमों में बयान करने के लिए आप मौका फराहम करें। 1 साल की देर है, आप अपने मसलक व मजहब, तंजीम और तहरीक का गिराफ नीचे गिरता हुआ खुद ब खुद महसूस करेंगे। अगर कोई इस चैलेंज को कबूल करता है तो मैदान में आए और करे कबूल। 1 साल तक आपने खतीबों को माइक पर नहीं बुलाना। 1 साल तक अपने मसलक, मजहब, जमात, तहरीक के जो खुतबा हैं उनको आपने प्रोग्राम में नहीं बुलाना। बुलाना किसको है? अतकिया को, असफिया को, शुराफा को, नुजबा को, गैर खतीब उलमा को, इनको आपने बुलाना है। मुदर्रिसीन को बुलाएं, आप मुसन्निफीन को बुलाएं, मुरत्तिबीन को बुलाएं, आप मुअल्लिफीन को बुलाएं, आप बुलाकर उनके बयानात करवाएं 1 साल तक। खतीब कोई नहीं बुलाना। फिर आप देखें, खुद ब खुद आप महसूस करेंगे कि आपके मसलक, मजहब, जमात, तहरीक का गिराफ
वो उरूज के एतबार से गिरता हुआ आपको खुद महसूस होगा। तो मेरे प्यारों, इतनी ज्यादा अहमियत है खताबत की और खुतबा की कि इसकी वजह से मसलक व मजहब में जान है, इसकी वजह से तंजीमों तहरीकों का उरूज और बाम है और उड़ान है। अल्लाह पाक की जात ने खताबत इतनी अजीमुल मर्तबत और इतनी अजब इसको शान अता फरमाई है। इसी वजह से मेरे करीम आका ने फरमाया था, इन्ना मिनल बयान लसिहरा, कि बयानात और खिताबात, इन्ना बेशक, ये कौन कह रहे? ताजदार कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा कोसरो तस्नीम से दुली हुई जुबान से कह रहे हैं, इन्ना बेशक। ये ताजियाने हैं मेरे उन के लिए जो खताबत और खुतबा की अहमियत का इनकार करते हैं। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, इन्ना बेशक, पक्की बात है, यकीनी बात है, मिनल बयानी, बाज बयान, मिन लफ्ज इस्तेमाल किया, मिन बाज बयान। बयान तो सारे करते हैं, उलमा भी बयान करते हैं और सुलहा भी बयान करते हैं, पीर हजरात मुर्शिद हजरात वो भी बयान करते हैं। तो अल्लाह के नबी फरमाया सारे बयान नहीं, मिन बयानात में से बाज बयान। गोया ये लफ्ज बोलकर रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने खताबत की जानिब इशारा किया, जो खास बयान है, खास बयान, आम बयान नहीं, खास बयान। क्या है? ए नबी पाक अलैहिस्सलाम, ए नबी मेहरबां, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, लसिहरा, वो इंसान पर, मजमे पर, लोगों पर, मुआशरे पर जादू सारकारी कर देते हैं। इससे आप लगाएं अंदाजा खताबत की अहमियत का। खताबत कितनी अहमियत की हामिल शय और कितनी अहमियत की हामिल चीज है। मैं इस मौका पर तमाम तर सोच और फिक्र और नजरिए रखने वालों से कहूंगा, आपको मैं गुर की बात बता रहा हूं, राज की बात बता रहा हूं। आप किसी भी किस्म का अपनी सोच और फिक्र का जाविया मुआशरे में मुंतकिल करना चाहते हैं और अपना हम नवाला, हम प्याला, हम मिशन, हम सोच, हम फिक्र, हम काज मुआशरे को बनाना चाहते हैं, लोगों को बनाना चाहते हैं, खुतबा को अपनी सोच और फिक्र का, अपने मामलात का और लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करने का जुज़्वे लाजिम समझ लें, तो यकीन जाने कि आपका नजरिया सोच दिनों में इंशाअल्लाहुल अजीज परवाज करता हुआ आपको दिखाई देगा। लोग जोक दर जोक आपको जो है आपके मिशन और काज के साथ जुड़ते हुए महसूस होंगे। ये एक राज है, राज खताबत का। इसके जरिए से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। मेरे प्यारों, मेरी जान के टुकड़ों, ये जो दुनियादार है ना, कंपनीज वाले, मार्केट्स वाले, बड़े बड़े हाल और बड़े बड़े माल चलाने वाले कारोबारी तिजारती, अल्लाह के बंदो, इन्होंने भी खतीब रखे हुए हैं। इनके खतीबों से मुराद है मार्केटिंग करने वाले, जिनका और कोई काम नहीं है, काम सिर्फ यह है कि जाके वो ज़हन साजी करते हैं। यानी उनके पास फन होता है, जुबान का फन। अपनी जुबान के फन के बलबोते पर वो मुआशरे में जाकर, मार्केटों में जाकर, तिजारती मराकज में जाकर लोगों की ज़हन साजी करते हैं। यानी कंपनियों ने हायर किए हुए हैं ऐसे बंदे कि जो मार्केटिंग करते हैं, उनका और कोई काम नहीं है, वो जुबान चलाते हैं। जुबान प्रोडक्ट ले जाते हैं और जाकर दुकानदार से, कारोबारी बंदे से बात करते हैं, और बात करने की जो स्किल्स हैं वो उनको सिखाई जाती, पढ़ाई जाती हैं। वो बाकायदा ट्रेनिंग हासिल करके इस फील्ड में आते हैं और उनकी लाखों में तनख्वाह होती है। बल्कि यूं कह लीजिए कि जो उनकी फैक्ट्री वालों की उस दुकान पे बैठ के चीज बेच रहा होता है ना, फिजिकल, उसकी इतनी तनख्वाह नहीं होती जितनी मार्केटिंग करने वाले की तनख्वाह होती है, जितनी जुबान चलाने वाले की तनख्वाह होती है, जितनी लोगों को कायल माइल फाइल करने वाले की तनख्वाह होती है। तो दुनियादार इसकी अहमियत से वाकिफ हैं कि हमने अपनी प्रोडक्ट सेल करनी है, तो उस सेल के लिए यह नहीं कि प्रोडक्ट बनाओ और लाकर दुकान पे रख दो, जिन्हें लेनी होगी ले लेगा। नहीं, प्रोडक्ट बनाओ, दुकान पे रखो, लेकिन बीच में एक बंदा डालो कि जो दुकानों पर जाकर बंदे बंदे से मुलाकात करके जुबान चला के उनकी ज़हन साजी करे और वो हमारे पास आए प्रोडक्ट खरीदने के लिए। गोया कि लोगों ने चीजें, सौदे बेचने के लिए भी खतीब हायर किए हुए हैं, दुनियावी खतीब, मार्केटिंग वाले खतीब, चीजें बेचने वाले खतीब। उन्हें इस बात की अहमियत का पता है। तो हम कुरान पाक पढ़ने वाले, हदीस पाक पढ़ने वाले और उसमें फिर आयात खताबत पढ़ने वाले, आयात खताबत से वाकिफ होने वाले, हमें खुतबा की अहमियत से इनकार क्यों है? बल्कि कई मदारिस ऐसे हैं, आप जो सुन रहे हैं, मुमकिन है कि आपको भी ये बात समझ आ रही है और आपको पता होगा भी हाँ ऐसे ही है।
उन्होंने मदरसा के चंदे के लिए खतीब रखे हुए हैं। मदरसे में चंदा करना है, मदरसे की गंदम इकट्ठी करनी है। बिलखुसूस ये जो हमारा परला एरिया है पंजाब का, आप यूं समझिए कि सरायकिस्तान, मुल्तान वाली साइड, और इसी तौर पर आप डेरा इस्माइल खां, मुजफ्फरगढ़, कोट अद्दू, इस तरफ का बिलखुसूस एरिया, उन्होंने मदारिस के चंदों के लिए खतीब रखे हुए हैं। वो खतीब साहब किसी जगह पर जाते हैं, टाइम लेकर वहां पर बयान करते हैं, बयान के बाद वो चंदा करते हैं। वो सारा का सारा चंदा उनकी खताबत के बलबूते पर होता है। तो भाई समझ रहे होंगे ना बात को, कितनी ज्यादा अहमियत है। मदारिस के चलने में भी खुतबा का किरदार है, मदारिस की तरवीज और तरक्की और इशाअत और उरूज में भी खुतबा का किरदार है, और मदारिस में जो पैसे आ रहे हैं उसमें भी खुतबा की खताबत का किरदार है, मार्केटों में भी खुतबा की खताबत का किरदार है। इसी तरह जैसे मैंने माकबल में कहा, मसलक व मजहब की तरवीज और इशाअत में खुतबा का किरदार है, तंजीमों तहरीकों के उरूज और बाम और तरक्की और उड़ान में भी खुतबा का किरदार है। ये जो हमारी तहरीक है सिपाही सहाबा की, नामूस सहाबा की और सरफरोशों की तहरीक, आप इसमें देख लें, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें तो बंदा बंदा खतीब है, इसका रुकन रुकन खतीब है। अल्लामा हक नवाज जंगवी शहीद, खताबत उनकी आप देखें। इसी तरह अच्छा कोई शख्स कहेगा जी उनके पास इल्म भी था और उनके पास दलाइल भी थे, भाई इसका तो इनकार है ही नहीं। ये तो वआतीनाहुल हिक्मा व फस्लल खिताब, ये शय तो अव्वल है, मुकद्दम है, इसी के ऊपर जो है खताबत की इमारत तामीर होती है, इससे इनकार नहीं। इल्म तो भाई इस किस्म का दुश्मनाने सहाबा के हवाले से पहले के उलमा के पास भी था। अब्दुल शकूर लखनवी रहमहुल्लाह, इन हजरात के पास भी इल्म था, कई किताबें लिखी, और इसी तौर पर और बड़ी शख्सियात के नाम आप अहबाब जानते हैं। उन शख्सियात का तारुफ या नाम मकसूद नहीं, एक लंबी दास्तान है। ये कौन सा नामूसे सहाबा की तहरीक जो है यहीं से स्टार्ट हुई थी। ये काम तो पहले से, इल्मी काम पहले से चला आ रहा है। जो अहबाब दुश्मनाने सहाबा की चालों से वाकिफ हैं, दुश्मनाने आले बैत की चालों से वाकिफ हैं, और इस तहरीक और इस नजरी और सोच को जानते हैं, उन्हें पता है कि इस मिशन पर काम इल्मी किताबी दलाइल पर वो पहले से चला आ रहा है, आज से नहीं। लेकिन इस काम को उरूज किसने दिया, इस काम को फिजाओं हवाओं खलाओं तक किसने पहुंचाया, इस काम को आलम इस्लाम आलम कुफर के अतराफ व कनाफ में किसने पहुंचाया, ये सिपाही सहाबा के खुतबा उलमा की खताबत ने पहुंचाया। अमीर अजीमत हजरत अल्लामा हक नवाज जंगवी शहीद रहमतुल्लाह तआला अलैह, उनकी खताबत ने इसे उरूज बख्शा। अल्लामा ज़ियाउर रहमान फारूकी शहीद रहमतुल्लाह तआला अलैह, कैसे कैसे खतीब, कैसे कैसे माओ ने खुतबा पैदा किए। और अल्लामा इसारुल कासमी, इमाम अहले सुन्नत अल्लामा अली शेर हैदरी, अल्लाहु अकबर कबीरा, जर्नैल इस्लाम मौलाना मोहम्मद आजम तारिक शहीद, कैसा खतीब था। और इसी तौर पर दो चार से दुनिया वाकिफ है, न जाने गुमनाम कितने होंगे, कितने खुतबा हैं कि जिन्होंने अपनी खताबत के जरिए से इस मिशन और काज और इस सोच और फिक्र को, नामूस सहाबा के अजमत के इस फरेरे को चार दांगे आलम में लहरा दिया। ये खुतबा की खताबत है। और इस वक्त जो इस तहरीक को उरूज मिला हुआ है, किसकी खताबत से है, गाजी इस्लाम अल्लामा औरंगजेब फारूकी हाफिज़हुल्लाह, उनकी खताबत। और भी कई सारे खुतबा हैं, ये सरे फहरिस्त चूंकि शख्सियत है इसलिए मैंने अर्ज किया और इनका नाम ले दिया। इनकी खताबत ने उरूज और तरक्की इस वक्त जो है इस जो तहरीक है, तंजीम है, इसको अता फरमाई है। आप किसी भी जमात को उठा लें, आप किसी भी तहरीक को उठा लें, आप किसी भी तंजीम को उठा लें, अगर आप उरूज की दास्तान उनकी देखना चाहेंगे ना, वो खुतबा के बगैर नामुकम्मल है, खताबत के बगैर नामुकम्मल है। ये तो मैंने एक खुली रोज़े रोशन की तरह हकीकत जो है उसको अयां किया, बयां किया। एक जो फैक्ट है, हकीकत है, सच्चाई है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, जमीनी हकायक हैं, वो मैंने आपके सामने रखे हैं। और साथ में मैंने चैलेंज भी किया है कि अगर आप इसकी अहमियत का इनकार करते हैं तो उनको चैलेंज है, एक साल के लिए खुतबा और खताबत को आप साइड पे कर दें, सिर्फ सादा मादा बयानात करना शुरू कर दें, फिर देखते हैं कि आपके मिशन और काज का गिराफ नीचे आता कि नहीं आता। तो मेरे प्यारो, वो अहबाब और वो लोग कि जो खुतबा का या खताबत का इनकार करते हैं, उनकी अहमियत का वो ना ऐसा करें। क्यों जुल्म करते हैं, क्यों ज्यादती करते हैं, क्यों ना इंसाफी करते हैं, क्यों हक को तस्लीम नहीं करते।
اور مزے کی بات یہ ہے، یہ تو شدید تر ناانصافی ہوتی ہے کہ ایک بندہ ایک شے سے فائدہ بھی اٹھائے اور ساتھ میں اس کا انکار بھی کرے۔ یہ احسان فراموشی ہوا کرتی ہے، اور یہ ایسی شے ہوتی ہے کہ جس کو کہا جاتا ہے کہ کھاؤ بھی کسی دا تو پھر اودے گن بھی نہ گاؤ، بلکہ اس کے برعکس اس کی بختوئیاں کرو۔ ہم خطباء سے اور خطابت سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں اور انہی کو ٹارچر کرتے ہیں، انہی کو زد و کوب کرتے ہیں، انہی کی بختوئیاں کرتے ہیں، انہی کی غیبتیں کرتے ہیں، انہی کو ہم لتاڑتے ہیں، انہی کو کہتے ہیں کہ یہ ایسے ہیں، یہ ویسے ہیں۔ اگر یہ ایسے ویسے ہیں تو پھر اپنی کانفرنسز کو کامیاب کروانے کے لیے خطباء کو بلاتے کیوں ہیں بھائی؟ اگر یہ ایسے ویسے ہیں تو اپنے جمعے کے مجمع کو جمع کرنے کے لیے، مضبوط بنانے کے لیے ان کو بلاتے کیوں ہیں؟ اپنی جلسے کے افتتاح کے لیے، اپنی تقریب کی عروج اور ترقی کے لیے اور گیدرنگ کے لیے، مجمع کے لیے خطباء کو کیوں بلاتے ہیں؟ تو ایسا کرنا چھوڑ دیں، جو حق حقیقت ہے اسے تسلیم کریں، ڈنکے کے چوٹ پر تسلیم کریں۔ ہاں غلطیاں ہوں اصلاح کریں، غلطی ہے اصلاح کریں، لیکن آپ حقیقت سے انکار نہ کریں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی حضرت ہارون علیہ السلام بہت بڑے خطیب تھے، ایسے خطیب تھے کہ موسیٰ جیسے صاحب علم، صاحب کتاب، صاحب شریعت نبی نے اللہ کی ذات سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، وَأَخِي ہارون، میرا بھائی ہارون، ہوا افصح منی لسانا، وہ زیادہ فصیح و بلیغ ہے مجھ سے، منی مجھ سے، کس اعتبار سے؟ لسانہ، زبان کے اعتبار سے۔ کیا ہے زبان کے اعتبار سے؟ افصح، زیادہ فصیح ہے، زیادہ بلیغ ہے، زیادہ خطیب ہے، اس کی گفتگو کا زیادہ اثر ہے۔ تو فرمایا کہ فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ يَرِدْ أَن يُصَدِّقُونِي، میرے اس مشن اور میرے اس کاز کی کامیابی کے لیے اور اس کو امر کرنے کے لیے اے اللہ اس خطیب کو میرے ساتھ بھیج دے۔ تو میں نے عرض کیا جیسے ہم اپنے جلسوں کی کامیابی کے لیے علماء صلحاء کو بلاتے ہیں، پھر ساتھ میں خطباء کو بھی بلانا پڑتا ہے، یوں سمجھیے کہ مجبوری ہے اور یہ ضروری ہے۔ اسی طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون کی اس آیت مبارکہ اور واقعہ سے بھی ہمیں یہی سبق ملتا ہے۔ تو ہم اس بات کو سمجھ جائیں اور اس بات کو اپنے دل دماغ میں بٹھا لیں کہ خطابت الحمدللہ ایک ایسی شے ہے، ایک ایسا وصف ہے، خدا کی ایسی عطا ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ میں تو آپ کو یہ بھی عرض کروں گا کہ یہ جو عیسائیت ہے، مسیحیت ہے، انہوں نے بھی جہاں جہاں آپ ان کی تاریخ دیکھ لیں کہ ان کا عروج ہوا یا جن علاقوں میں ان کا زیادہ غلغلہ ہے، یا آپ سنیں کہ فلاں علاقے کے مسلمان عیسائی ہو گئے، مسیحی ہو گئے، انہوں نے کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، اس کی آپ تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، ان کے مبلغین اور ان کے خطباء کا کردار ہے۔ آج بھی عیسائیوں مسیحیوں میں بڑے بڑے خطیب ہیں، ان میں پاکستان میں بھی بہت بڑے بڑے خطیب ہیں۔ ایک خطیب کا میں نام لے لیتا ہوں، باقیوں کا نام نہیں لیتا، ڈاکٹر ناصر جمیل، یہ لاہور کے چرچ کے اور کلیسا کے اور ان کے جو عبادت خانہ ہے اس کے یہ بہت بڑے خطیب ہیں۔ ہر اتوار کو ان کا بیان ہوتا ہے اور لائیو بیان ہوتا ہے۔ ڈاکٹر ناصر جمیل نامور خطیب ہے، اور اس کی خطابت آپ سنیں گے تو آپ دنگ رہ جائیں گے، حیران رہ جائیں گے، ایسے انداز سے وہ خطابت کرتا ہے اور ایسے انداز سے مجمع سے خطاب کرتا ہے، مجمع دم بخود بیٹھا ہوتا ہے، اس کی خطابت کا سار طاری ہو جاتا ہے لوگوں پر۔ ایسی خطابت کا ملکہ ہے ڈاکٹر ناصر جمیل کے پاس۔ یہ کرسچن ہے، یہ عیسائی ہے، یہ مسیحی ہے۔ تو خطابت کسی کی میراث نہیں ہے۔ خطابت اور بھی کئی سارے سکھوں میں کئی ایسے خطباء ہیں، سکھوں کے اندر نامور خطباء، ہندوؤں میں ایسے خطباء ہیں، یہودیوں میں ایسے خطباء ہیں۔ تو میں نے کہا کہ ہر مذہب، مسلک، اس لیے میں بار بار مذہب کا لفظ استعمال کر رہا تھا کہ مذاہب میں ان کی بڑھوتری میں اور ان کی مجموعوں کی زیادتی میں، ان کے اندر آنے میں جو فالورز ہیں ان کی جو زیادتی ہے، اس اہمیت کو سمجھو اور خطابت کی اہمیت کو سمجھ کر اس کو پوزیٹیو، مثبت اور درست کاموں کے لیے، حق کاموں کے لیے استعمال کرو، اور اس کے ذریعے سے اسلام، دین، شریعت اور نبی پاک علیہ السلام کا جو لایا ہوا مشن ہے اس کی خدمت کرو۔ اچھے نظریات کے حوالے سے آپ اس کی خدمت میں اپنا کردار ادا کریں۔ جتنا ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں اپنے دین کی نشر و اشاعت کے لیے، اتنا ہی انشاءاللہ ہمارے دین، ہمارے اسلام کو فائدہ پہنچے گا۔ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، میں نے تو دیا جلا کر سر عام رکھ دیا ہے۔